کہا جاتا ہے کہ زمانہ قدیم میں ایک دیہات تھا جس کا نام چاندپور۔ یہ گاؤں دور دراز کھیتوں، آم کے باغوں اور بہتی نہروں کے درمیان آباد تھا۔ صبح کے وقت جب سورج کی کرنیں کھیتوں پر پڑتیں، سبزہ چمک اٹھتا اور گاؤں والے اپنے جانوروں کو چرنے کے لیے لے جاتے۔ شام کے موڑ پر جب کوئل کی آواز سنائی، فضا میں ایک سکون بکھر جاتا۔ گاؤں کے لوگ اپنی سادہ زندگی اور محنت سے خوش و خرم رہتے۔ لیکن ہر آبادی میں کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو دوسروں کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس گاؤں میں 3 مرد رہتے تھے، اکرم، بشیر اور کریم۔ یہ تینوں عمر میں ایک دوسرے سے بچھے نہ تھے، پر ان کے ذہن میں چتکا اور دل میں تما چھلکتی تھی۔ دیہاتی انہیں کبھی نیک نہیں سمجھتے، لیکن ان کی چالاکی میں آسانی سے پھنس جاتے۔ لوگ کہتے، یہ تینوں کسی کے قابل اعتماد نہیں، جہاں مصلحت دکھے وہیں اپنا جال بچھا دیتے۔ اکرم ان میں سب سے زیادہ، بشیر ایک متحرک شخصیت تھا، رنگ سانولا، چہرہ لمبا، آنکھوں میں تیزی۔ جب بولتا تو الفاظ ایسے برستے جیسے موسلادھار بارش۔ سننے والے حیرت میں پڑ جاتے، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے آج جھوٹ؟ اس کی کہانی کی صفائی اتنی کمال کی تھی کہ حقیقت اور فریب میں فرق کرنا ناممکن لگتا۔ بشیر ایک نحیف اور پتلا مرد جس کی آنکھیں چپکے سے چمکتی اور انگلیاں تیز رفتار۔ ہر بار جب کسی کا سامان غائب ہوتا، لوگوں کے دل میں فوراً اس کا نام آ جاتا۔ اتنا مہارت سے چوری کرتا کہ کوئی اسے کبھی رنگے ہاتھوں نہیں پکڑ پاتا، جیسے ایک جادوگر ہو۔ اس کے اندر لالچ کا سمندر تھا، کبھی بھرتا نہیں، ہمیشہ مزید چاہتا۔ نوجوان تھا، چہرے پر ملکی مسکراہٹ، گفتگو میں نرمی، لیکن اندر سے سیاہ دل۔ دوسروں کو آسانی سے قائل کرنے کا مہارت رکھتا تھا۔ وہ مسلسل منصوبے بان رہا تھا اور ساتھیوں سے کہتا، بس میں سوچ لوں گا، تم صرف عمل کرو۔ اس طرح ان تینوں نے دیہی سادہ لوگوں کو دھوکہ دے کر کبھی تھوڑے پیسے اکٹھے کر لیتا اور کبھی کھانا۔ گاؤں کے ایک کونے میں رہنے والا بابا سلیم، جسے ہر کوئی جانتا تھا، اپنے 70 برس کی عمر میں تھا۔ اس کی سفید داڑھی، کمزور جسم اور سلوٹ سے بھرے چہرے کے باوجود آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی جو دیکھنے والا احترام سے مات رہ جاتا۔ اس کی جوانی میں سفر کی کہانیاں بے مثال، ایران کی کوہستانی وادیوں سے لے کر ایند کے بے انتہا صحراؤں تک اس نے دنیا کے ہر کونے کو نپ لیا تھا۔ سوداگر، ڈاکو، شاہی دربار، درویشوں کے خلوت خانے، اس نے سب کو قریب سے دیکھا تھا۔ علم اور تجربے کا خزانہ اس کے پاس ایک ایسی دولت تھی جس کے آگے لوگ جب کسی مشکل میں گرفتار ہو جاتے تو فوراً بابا سلیم کی پناہ میں آ جاتے۔ وہ زیادہ بولتا نہیں تھا، لیکن جب بولتا تو الفاظ دل میں گہرائی سے اتر جاتے۔ بچے اس کے پاس کہانیاں سننے آتے، جوان مشورے کے لیے، اور بوڑھے سکون کی تلاش میں۔ گاؤں والے اسے اپنا روحانی رہنما اور دانا سمجھتے تھے۔ اکرم، بشیر اور کریم اکثر بابا سلیم جب بھی بڑا کو دیکھتے، ان کے دل میں حسد جگ جاتا۔ کیا وجہ ہے کہ یہ آدمی اتنا احترام یافتہ ہے؟ نہ تو اس کے پاس دولت ہے، نہ ہی کوئی فوج، پھر بھی لوگ اس کی ہر بات کیوں مانتے ہیں؟ ایک دن کریم نے بھائیوں سے کہا، یہ بڑا کوئی عام شخص نہیں۔ کئی بار لوگوں نے اس کے بارے میں کہا، آئس کمال کی پرانی کتابیں پڑھتا ہے، ہر صفحہ ایک معمہ۔ کیا وہ کوئی پوشیدہ خزانہ چھپا رہا ہے؟ اگر ہم اس پر قابو پالے ایس اکرم نے آنکھیں تنگ کر کے کہا، خزانہ اگر سچ میں موجود ہے تو ہمیں ہمت جمع کرنی ہوگی۔ یہ کوئی معمولی کھیل نہیں، انعام بہت بڑا ہے۔ بشیر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن وہ آسانی سے کچھ نہیں بتائے گا، ہمیں اپنی ذہانت لگانی ہوگی۔ ہم 3 ہیں، وہ اکیلا، لیکن عقل ہماری ہے۔ وہ ہمیں زیادہ دیر نہیں روک سکے گا۔ اس طرح ان کے دل میں طمع کا بیج بو دیا گیا۔ تینوں نے عہد کیا، اب وہ سیلاب کو اپنی چالاکی سے قابو میں لائیں گے۔ آدیر بابا سلیم نے ان کی نیت کو بخوبی پہچان لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تینوں ایک دن اس کے پاس آئیں گے اور خزانے کی بات کریں گے، لیکن وہ ڈرا نہیں، بلکہ مسکراتے ہوئے سوچا، اب وقت آ گیا ہے کہ ان تینوں کو سبق سکھاؤ۔ لالچ کے اندھے کو دولت کبھی نہیں ملتی، لیکن اگر عقل سے سبق سیکھ جائے تو شاید سیدھے راستے پر آ جائے۔ اگلی صبح تینوں بابا سلیم کے دروازے پر پہنچے۔ باڑے لکڑی کی چارپائی پر بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اکرم آگے بڑھا اور بولا، بابا جی،
हम अब से बरकत हासिल करने आए हैं। सुना है कि आपके पास गहरा इल्म है। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, दुआ इसे मलती है जिसका दिल साफ हो। तुम्हारी नीयत कैसी है? बशीर ने फौरी जवाब दिया, हम गरीब लोगों की आंखों में एक उम्मीद की चमक। बाबा जी ने मदद की इल्तिजा की। आपके इल्म में हमारे लिए राहत का राज है, पोशीदा खजानों के असरार जो सिर्फ आप जानते हैं, हमें भी बताएं। अगर हम इस राज में शरीक हो जाए तो जिंदगी की तलखी मिट सकती है। बाबा ने आंखें बंद की, गहरे ख्यालों में खो गए। फिर आहिस्ता ने वदा किया कि जरूर मदद करूंगा, लेकिन याद रखो ये खजाना हर किसी के हिस्से नहीं आता। इसके लिए सख्त आजमाइश से गुजरना जरूरी है। जो लालच में पड़ेगा वो नाकाम रहेगा, जो सब्र करेगा वही कामयाब होगा। तीनों ने जाहिरी तौर पर इल्तिजा की, मगर अंदर ही अंदर उनके दिल में एक आग भड़क उठी। मैंने कहा, हम हर चैलेंज के लिए पूरे तैयार हैं बाबा जी, बस अब रहनुमाई कीजिए। बाबा सलीम ने आहिस्ता से बताया, गुजरे हुए रात में जंगल के दिल में एक कोहन पुराना बरबत दरख्त है। इसके नीचे एक गहरा संदूक दफन है, मगर खबरदार रहना, जो तमा की आग में जलेगा वो तबाह हो जाएगा। ये सुआन कर उनकी आंखों में एक अजीब चमक जगमगा उठी। वो आहिस्ता आहिस्ता मासरात में मशगूल हो गए। सरगर्दान रूह, ये सिर्फ कहानियां नहीं, असले रोज वो संदूक। आसमान पर सिया बादल छाए थे। कुनवे में एक मरमोज खामोशी। बरगद का दरख्त जैसे कोई अजीम देवता तारीकी में खड़ा था। इसकी शाखें किसी ड्रोनी शबह की बाजुओं की तरह फैली हुई थीं। अकरम ने जमीन खोदना शुरू किया। बशीर और करीम भी फौरन इसके साथ जाट गए। थोड़ी देर बाद हैरत के साथ एक पुराना चौबैन संदूक सामने आया। तीनों दोस्त खुशी से उछल पड़े। अकरम ने तेजी से कन उठाया, लेकिन अंदर सूना आचांदी की जगह काले और बड़े सांप वो फिन उठाने लगे और उनकी खौफनाक सरसराहट जंगल में गूंजने लगी। बशीर ने अचानक चीख मारी। करीम का मशल जमीन पर गिर गया और अकरम पीछे हटते हुए ढह पड़ा। सांप उन पर टूट पड़े। तीनों के होश उड़ गए। वो जान बचाते हुए भागे, पसीने में तेर तेर कांपते हुए गांव लूट आए। अगले दिन वो बाबा सलीम के पास पहुंचे। अकरम ने कांपती आवाज में कहा, बाबा जी हाँ, हम शिकस्त खा गए, वहां से खाली हाथ लूट आए थे। बाबा ने आंखें बंद की और आहिस्ता से मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने पहले भी कहा था कि तमा बर्बादी का सबब बुनती है। खजाना सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनके दिल साफ होते हैं, लालचियों को कभी नहीं। तुम्हारे दिल में सफाई नहीं थी, इसीलिए खजाने की जगह जहर मिला। तीनों एक दूसरे को देखते रह गए। लालच का जादू अभी भी उनके दिलों में था। वो सोचने लगे, क्या इस बार ने हमें धोखा दिया है? कहीं गहराई में सच में खजाना मौजूद है। बस एक और मौका चाहिए। सांपों से भागते हुए जान बचाने के बाद तीनों की हालत बहुत खराब थी। पसीना बेरहमी से बह रहा था, दिल बेकरार तड़प रहा था और सांसें तंग हो चुकी थीं। पूरी रात एक दूसरे को कोसती रहे। अकरम ने गुस्से में कहा, ये सब इस बदतरीन सैलाब का खेल था। इसने जानबूझकर हमें फंसाया ताकि हम डर जाए। बशीर दांत पेश कर बोला, क्या हमने सोचा था कि वहां कोई खजाना मिलेगा? लेकिन इसने हमें मौत के दहाने पर धकेल दिया। करीम खामोशी में बैठा, इसकी आंखों में अब भी तमा की चमक जगमगा रही थी। कुछ लम्हों के बाद इसने आहिस्ता कहा, तुम दोनों बेखबर हो, खजाना यकीनी था, मगर इसने हमें पहला इम्तिहान दिया। सांप महज एक आजमाइश थे। अगर हम हिम्मत ना दिखाते तो शायद संदूक के नीचे छपी दौलत मिले। अकरम और बशीर जज्बात में बहकर इसकी हिकमत अमली पर मत गए। अकरम ने आहिस्ता कहा, सुबह जब वो बाबा सलीम के पास पहुंचे तो उनकी आंखों में शर्मिंदगी और जुबान पर लालच वाज़े था। अकरम ने अदब का लिबास ओढ़ते हुए खामोशी से कहा, बाबा जी, अब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हमने लालच में आकर गलती की। अब बस एक और मौका दीजिए। हम सब्र और हिम्मत का सबूत देंगे। बाबा ने उनकी आंखों में गहराई से झांका, जैसे उनके दिल की गहराइयों में देख रहा हो। फिर आहिस्ता से कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, खजाने का राज सिर्फ उन पर खिलता है जो सच की राह पर चलते हैं।
जहाँ झूठ के दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। तीनों ने फौरन ऐलान किया, हम सिर्फ सच बोलेंगे। बाबा जी, उनकी आंखों में एक गहरा राज था, ने बताया कि करीब के पहाड़ पर एक खुफिया गार मौजूद है। इसके मदखल पर एक चमकदार सुनहरी दरवाजा है, जो सिर्फ उन लोगों के लिए खिलता है जो दिल से सच्चे और जुबान से सच का रास्ता इख्तियार करो। अगर तुम सच्चाई पर डटे रहो तो खजाना तुम्हारा होगा, लेकिन झूठ की राह पर चले तो दरवाजा हमेशा बंद रहेगा। तीनों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब कामयाबी करीब है, यकीन है। रात को वो पहाड़ी की तरफ रवाना हुए। चांदनी रात थी, रास्ता रोशन। जब वो गार के मुंह पर पहुंचे तो हैरत से देखा सुनहरी दरवाजा जाद रोशनी बखेरते हुए। अकरम आगे बढ़ा, गुरूर से कहा, मैं सबसे सच्चा हूँ। दरवाजे को धकेलने लगा, लेकिन वो एक पिल भी ना हिला। बशीर आगे आया, जोर से बोला, मैं इससे भी ज्यादा सच्चा हूँ। इसने भी कोशिश। करीम ने बार बार कोशिश की, लेकिन बेसूद। दरवाजा ऐसे मजबूत था जैसे कोई पत्थर की दीवार हो। अचानक दरवाजे पर एक राज आश्कार हुआ। झूठे और लालची लोगों के लिए ये खजाना हराम है। उनके चेहरे पेके पड़ गए। दिल में खौफ और गुस्सा एक साथ अलिफामुल आया। वापसी का सफर अकरम ने दा किया। ये सब फरेब है, कोई खजाना नहीं। बड़ा हमें बस धोखा दे रहा है। बशीर ने जवाब दिया, दरवाजा तो मौजूद था और तहरीर भी नजर आई। ये सब जादू सा लगता है। करीम गौर में डूबा, फिर बोला, नहीं, ये जादू नहीं। एक पोशीदा राज छुपा है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। हमें इसके ज़हन से हकीकत को खींचकर बाहर लाना होगा, किसी भी कीमत पर। उनकी ये मुहिम गांव वालों की नजरों से मख्फी नहीं रही। कई लोगों ने देखा। रात के अंधेरे में वो जंगल की तरफ रवाना हुए, फिर वापस आए, जख्मी, खौफजदा और तबाहाल। कुछ दिन बाद पहाड़ की तरफ रवाना हुए, नाउमीद और मायूस वापस आए। लोग कानिक झांकने लगे। तीनों किसी मशकूक हरकत में मुब्तला मालूम होते थे। क्या वो बाबा सलीम के पीछे पड़ गए थे? बाबा जी ने तो हमेशा नेकी की है, ये लोग उनके साथ दगा क्यों कर रहे हैं? बाबा सलीम सब सुन रहा था, मगर खामोश रहा। वो जानता था कि उनके अंदर का जहर अभी मुकम्मल तौर पर खारिज नहीं हुआ। चंद दिन बाद करीम ने दोनों को अपने घर में बुलाया, सरगोशी में कहा, अब हमें एक नया मंसूबा तैयार करना होगा। खजाने तक पहुंचने के लिए हमें बढ़ती हुई सैलाब पर काबू पाना होगा। वो राज अपने पास छुपा कर बैठा है। अगर हम इसे गिरफ्तार कर ले और डरा धमका दे। अकरम ने जोर दिया, अगर देहात वाले सुआन ले तो? बशीर ने मोहतात से कहा, हमें हर कदम पर ध्यान रखना होगा। इस तरह उन्होंने एक पिनहानी मंसूबा बांध डाला, एक ऐसी चाल जो पहले से मुख्तलिफ हो। वो पुख्ता आज़म थे। नरमी से कुछ हासिल नहीं हुआ तो अब कुछ और करना होगा। तो अब सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। बाबा सलीम को ये सब पहले ही मालूम था, जैसे कोई खास इशारा मिला हो। अपने दिल में इसने सोचा, ये आखिरी हद तक जा चुके हैं, मुझे भी उनको एक सबक सिखाना होगा। इसने खुद उन तीनों को बुलाया और साफ अल्फाज में कहा, 2 आजमाइशें तुमने देख ले, अब तुम खजाना चाहते हो? तीनों ने एक आवाज में, जी हाँ। बाबा ने गौर से कहा, खजाना मौजूद है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी आजमाइश से गुजरना होगा। अगर जुर्रत है तो कल रात मेरे साथ चुल्लू ने रिस्तान, वहां एक खजाना दफन है। लेकिन खबरदार, ये खजाना सिर्फ इसे मिलेगा जो मौत की हकीकत को गहराई से समझ ले। जो मौत से डरेगा वो खाली हाथ लूटेगा। रिस्त। लेकिन तमा ने उनके कदमों को मजबूत कर दिया। अंधेरे में भी उनका अज़्म कम नहीं हुआ। रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता गांव पर छा रही थी। आसमान पर बादलों की गहरी परतें बिछी हुई थीं और कहीं कहीं चमकती बिजली रात की सियाही को चाक कर देती थी। गांव के सारे लोग खौफजदा अपने घरों में दबक कर बैठे थे। लो हल्की सी कांप रही थी। 3 मर्द खामोशी से अपनी मंसूबा बंदी कर रहे थे। अकरम, बशीर और करीम के दिलों में खजाने का जुनून पहले से कहीं ज्यादा धमाकेदार था। उनके जहनों में सिर्फ एक ही ख्याल गूंज रहा था, कल रात कब्रिस्तान में कब खजाना मिलेगा। वो बाबा सलीम की बातों को अपने खास अंदाज में समझने की कोशिश कर रहे थे। उनके दिल में अब ये अकीदा पुख्ता हो चुका था कि इस बार दौलत
जरूर उनके कब्जे में आ जाएगी। रात के अंधेरे में तीनों चुपके से अपने घरों से रवाना हुए। वीरान देहाती रास्तों पर चलते हुए वो इस वीरान किब्रसत्तान की तरफ बढ़े जो गांव की हुदूद में था। वहां के दरख्त खुश्क और कज मर्ज खड़े थे, जैसे सदियों के राज जो खामोशी में दबे हुए थे अब आवाज दे रहे थे। हल्की हुआ के मलाल में दरख्तों की शाखें एक दूसरे से टकराते हुए गोया किसी पिन्हानी राज को सांचितती हुई। दूर कहीं से कुत्तों की भौंक और कब्रों के दरमियान अलिफालुफ की डरौनी आवाज सन्नाटे में तना अंदाज होती। अकरम ने अपनी चादर तंग से अपने आसपास लपेटी और आहिस्ता वो कहते हैं, ये सैलाब हमें डराना चाहता है, लेकिन हम कभी नहीं डरेंगे। खजाना सिर्फ चंद कदम दौर है। जब वो तीनों कब्रिस्तान के दरमियान पहुंचे तो वहां एक पुरानी और चिकनी चूर किब्र के करीब बाबा सलीम पहले से खड़े थे। उनके हाथ में एक चिराग था जिसकी रोशनी मुबहम सी थी। अजीब सी सुकून बख्श रोशनी छा रही थी। बाबा ने नजर उठाकर कहा, तुम आ ही गए। ये कब्र इस आबादी की सबसे पुरानी कब्र है, एक ऐसी जगह जहां एक नेक दिल इंसान आराम पजीर है जिसने अपनी पूरी जिंदगी झूठ और दगा से नफरत की। कहते हैं कि इसकी रूह आज भी आसपास आजादाना घूमती है। अगर तुम सच पर डटे रहो तो ये कब्र खुद तुम्हारे सामने खिल जाएगी और खजाना तुम्हें मिल जाएगा। तीनों ने कब्र को गौर से देखा। मिट्टी बिल्कुल सड़ चुकी थी, अतराफ में घास अलिफाग आई थी और दरमियान में एक पुराना कतबा आधा टूटा हुआ पड़ा था। बशीर ने धीमी आवाज में कहा, ये तो बिल्कुल एक डरावनी जगह है। क्या ये कब्र वाकई खिल गई? तो अकरम ने इसे डरने की फिक्र नहीं करनी, ये सब सिर्फ दिखावा है। हम तीनों ताकतवर हैं, ये मुसीबत हमें बेवकूफ नहीं बना सकती। बाबा ने कहा, याद रखो, खजाने के करीब पहुंचते ही सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो जाएगा। को अपनी नियत और दिल की सच्चाई जाहिर करनी होगी। झूठे के लिए ये जमीन आग बन जाएगी। ये सुनकर तीनों एक दूसरे को देखने लगे। करीम ने सबको खामोश रहने का इशारा किया और आगे बढ़कर कब्र पर हाथ रखा। जैसे ही इसका हाथ कब्र की मिट्टी पर लगा तो अचानक जमीन हिलने लगी। कब्र में एक धीमी दरर फैल गई और इस दर से खुफिया रोशनी चमकने लगी। अकरम और बशीर ने एक दूसरे को हैरत भरे निगाहों से देखा। उनके दिल की धड़कनें तेज होने लगे। कब्र के अंदर से किसी की मुबहम पिच पिच जैसी आवाजें आने लगे। एक नामालूम जुबान में कुछ पढ़ा जा रहा था। बाबा सलीम खामोशी से खड़े थे, उनकी आंखें हर चीज को देख रही थीं। करीम ने जोर लगाया और कब्र की मिट्टी हटाने लगा। थोड़ी देर में अंदर से एक जंग-ज़दा लकड़ी का संदूक नुमाया हुआ जिस पर जंजीरें तड़प रही थीं। संदूक मौजूद था। तीनों ने देखा। चेहरे पर खुशी और तमा का रंग जाहिर हुआ। अकरम ने फौरन संदूक को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसने जंजीर को छुआ अचानक तेज आंधी चलने लगी। कब्रिस्तान के माहौल में गर्द और गुबार छा गया। कब्रें हिलने लगे, दरख्तों की शाखें टूटने लगे और अलुफ की आवाजें तेज हो गईं। अकरम का हाथ जल सा गया। दर्दुन तेज में चीख उठा। बशीर और करीम भी डर के मारे कांपने लगे। बाबा ने गारुती हुए कहा, ये खजाना सिर्फ सच्चे दिलों के लिए है। झूठे और लालची के लिए ये जंजीरें जहरन कातिल बन जाती हैं। करीम ने जान बचाने की आखिरी उम्मीद में चीखा, हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन खजाना जी हाँ लेंगे। गुस्से और जज्बे में आकर इसने चाकू को कमर से खींच लिया और धमकी दी, अगर आपने हमें नहीं दिया तो हम जबरदस्ती छीन लेंगे। अकरम और बशीर ने भी फौरन हथियार निकाल लिए। उनकी आंखों में अब खौफ की जगह बर्बादकुन लालच छा गया था। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, कब्र के अंदर से एक मोहलिक धमाका, अचानक जंजीरें खुद ब खुद टूटी, गिरती हुई जमीन पर बखर गई। संदूक का ढकना आहिस्ता खुला। अंदर झांका तो दौलत से लबरेज नजर आया। सोने के सके, चांदी के जेवरात, हीरे जवाहरात की चमक चारों तरफ फैल गई। तीनों के चेहरे हैरत से खिले रह गए। अकरम लपक कर आगे बढ़ा। एक मुश्त सूना। अचानक इसकी चीख फूट निकली, दर्द से तड़पते हुए। इसके हाथ पिघलने लगे, खून की तरह बहते हुए। वो डर कर जमीन पर ले गिरा। बशीर ने हिम्मत जमा की, जेवरात उठाने की कोशिश की, मगर वो जेवरात एक पिल में सांपों में बदल गए और इसकी गर्दन पर लिपट गए। करीम ने हीरे जवाहरात छीनने की कोशिश की तो आग के शोले इसकी कमीज में झुलसने लगे। तीनों तड़पने, चीखने और जान बचाने के लिए भागने लगे। बाबा ने गजब से कहा,
ये खजाना दुनियावी दौलत नहीं, ये आजमाइश है जिसने लालच ने इसे तबाह कर दिया। एक दहशतनाक अंजाम। इसकी आवाज गूंजती रही और माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। संदूक फिर से बंद हो गया, कब्रों की पिच पिच थम गई और कब्रिस्तान खामोश हो गया। लेकिन तीनों की हालत बहुत खराब थी। अकरम के हाथ बुरी तरह जल चुके थे, बशीर की गर्दन पर निशान जल चुके थे और करीम की कमीज आधी जल गई थी। वो बेहोश हैकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वाले कब्रिस्तान के करीब से गुजरे तो उन्होंने ये मनाजिर देखे। तीनों बेहाल पड़े थे और बाबा सलीम एक कब्र के पास बैठे दुआ पढ़ रहे थे। गांव वाले हैरत से जमा हो गए। सब ने एक ही बात कही, ये वो लोग थे जो तमा के जाल में फंस गए। बाबा जी ने बार बार समझाने की कोशिश की मगर उन्होंने कान ना धुरे। जब हकीकत का पर्दा उठा तो वो गांव वालों के सामने मायूस खड़े थे। ना दौलत रही ना इज्जत, हर नजर उन पर घूरती थी। बाबा सलीम ने करीब आकर कहा, तुमने देखा कि तमा का अंजाम किया होता है। दौलत वही है जो मेहनत और ईमान से मिले। धोखा और झूठ से हासिल होने वाला खजाना जहर बनकर इंसान को तबाह कर देता है। तीनों की आंखों से आंसू जारी हो गए। अकरम नर्म और लरसती आवाज में बोला, बाबा जी, हमने एक बहुत बड़ी गलती की है, माजरत चाहते हैं। बशीर ने कहा, हमने आपको तकलीफ दी और शक किया, लेकिन आज आंखों देखा सच है। करीम, जो सबसे ज्यादा जिद और लालची था, आंसू बहाते हुए बोला, अब हमें कोई खजाना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सुकून चाहिए। बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यही असल खजाना है, सुकून और ईमान। अगर तुम सच्ची दिल से तौबा करो तो जिंदगी का मुसीर बदल सकता है। गांव वालों ने भी उनकी सादिक नियत देखी और कहा, अगर ये अपनी गलतियों से सबक सीख ले तो हमें भी उन्हें मुआफ कर देना चाहिए। इस तरह उन तीनों ने अपनी जिंदगी का रुख बदल दिया। वो दिन रात मेहनत में लग गए, दूसरों की मदद करने लगे और बाबा वो लोगों की मदद करने लगे। दिल में पिन्हानी बुराई आहिस्ता आहिस्ता धुलती गई। उनकी हालत में तब्दीली आने लगी और गांव वाले फिर से उनका एहतराम करने लगे। किब्रसतान की वो तारीक रात उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गई। लालच इंसान को अंधा कर देता है और झूठ इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है। ईमान की असल दौलत सच्चाई और सब्र में छपी है। बाबा सलीम की हिकमत ने उनकी जिंदगी को एक नई राह दिखाई। गांव वाले आज भी इस कहानी को याद करते हैं। तीन दगाबाज जो खजाने के लालच में फंस गए, लेकिन एक अनमोल सैलाब ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वो अपनी असल पहचान से रूबरू हुए।